So next topic is maximum and minimum value of a function. Okay, so ये जो maximum and minimum value of a function discuss करने से पहले I would like to discuss you about the slope of a graph. Okay, so एक बार हम देखते हैं. Slope of a graph, because ये maximum minimum है, इसका बहुत significance है. Okay, so एक बार देखो, I am going to have three graph here. One thing is this, another one is this, and the last one is this. Okay, इधर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ, this is y, this is x, similarly y, x, and here also y and x. इधर आप देख सकते हैं this make an angle theta. Okay, fine. So here theta equal to 0, and here this is theta. Okay, fine, and here it is greater than 90 degree. Okay, now अब आप देखिए इधर मेरे पास randomly I'm going to select two values like this x1 and x2. so इसका corresponding value y का भी होगा. ये देखिए this is y1 and here this is y2. Similarly देखिए this is x1 and here this is x2, and here y1 equal to y2. x1 में भी same value है और x2 में भी same value. now ये देखिए this is x1, y1, and let this be x2, and let this be the value that is y2. okay, now अब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, सो स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. हाउ आई विल कैलकुलेट द स्लोप इज I need to take y2 minus y1 upon x2 minus x1. इधर आपको पता है अगर आप इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करोगे, नेमिंग दिस एज ABC, है ना, ABC. देखो ऐसे देखिए this is A, this is B, and here this is C. this angle is theta. ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों थीटा है. this is x2 minus x1, and here this is y2 minus y1. so आपका ये जो y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to the slope, and that is equal to tan theta. so slope हमने निकाला tan थीटा का वैल्यू के हिसाब से. इधर आप देखिए इधर थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज गोइंग टू बी 0 वैल्यू. tan थीटा इज गोइंग टू बी 0. और आप ये भी आपको पता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to tan theta, और y2 is equal to y1 था ही. so y2 is equal to y1 था, therefore y2 minus y1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए. सो इधर आपका क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया. ओके, इधर आप देखिए y2 इज लेस देन y1. इस रीजन की वजह से आप देखिए y2 minus y1 अपॉन
x2 minus x1, that is equal to आपको, of course that has to be equal to tan theta, but in this case it's going to be a negative value. Okay, it's going to be a negative value. So this was how we calculated the slope between 2 points. Okay, now how to calculate the slope at any particular point of a graph. Okay, अब वो कैसे करते हैं देखो. Let this be a graph. Okay, let this be a graph, something like this, and you need to calculate the slope at any particular point. So आप वो point mention कर लीजिए, and now what you need to do is just draw a tangent to that point. Okay, this will be the tangent. वो बिल्कुल है ना, इस सिर्फ इस पॉइंट से टच करके जाना है. Now this is angle theta. Now tan theta will give the slope. So here of course the slope is going to be negative because it's greater than 90 जा रहा है. Okay, now let us consider another example. एक ग्राफ है ऐसे और आपको इस पॉइंट में स्लोप निकालना है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे. Okay, so this is going to make an angle theta is equal to 0. Okay, so tan theta क्या होगा, tan theta हो जाएंगे आपका 0. So slope इधर 0 है. Let us consider another example. Okay, a graph something like this, और आपको इस पॉइंट में स्लोप निकालना है. Again you have to draw a tangent. Now it will make an angle less than 90 degree. Now इधर स्लोप क्या होगा, tan theta, and that is going to be a positive slope. Okay, so this is how we calculate the slope at any particular point or slope between two given values. Okay, now after this discussion we can discuss about the maxima and minima. Okay, so देखिए, let us consider a graph like this. ऐसे वेरी ओके ऐसे जा रहा है. This is y and here this is x. So you can see one thing, at this particular point you can say that the y is having minimum value, and at this particular point you can say that y is having its maximum value. है ना. So this is because ये जो ग्राफ है, this graph is function of x, y is equal to f of x ग्राफ है. So इधर इस particular point में x1 पे y का वैल्यू मिनिमम है, y मिनिमम, एंड x2 में y का वैल्यू मैक्सिमम है, that is y max. And you must have noticed something, ये दोनों पॉइंट पे dy by dx क्या है, 0 है, यानी कि स्लोप आप देखिए 0 आ रहा है. कैसे देखो, आप इधर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, इधर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, थीटा एंगल बनेंगे, और इधर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, थीटा इक्वल टू 0 होगा, इधर भी थीटा इज इक्वल टू 0 है. सो किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. लाइक व्हाट वी हैव टू डू इज dy by dx, यानी कि we will differentiate y with respect to x and we will equate that is equal to 0. Okay, we will equate that is equal to 0. Fine. Now for what value of x, I repeat, for what value of x, for what value of x dy by dx is equal to 0. I repeat,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का कौन सा वैल्यू में dy by dx इज इक्वल टू 0 आएंगे, हम इसमें से वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका y का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है या y का वैल्यू जो होंगे वो मिनिमम हो सकता है। समझ में आ रहा है? We will differentiate y with respect to x and we will dy by dx is equal to हम 0 पुट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे for what value of y we are getting dy by dx is equal to 0. So उस value of x पे y will be having either maximum value or minimum value. अब हमारा टास्क ये है whether it is going to be maximum or whether it is going to be a minimum value. Okay, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। How to find out that? Okay, देखो कैसे करेंगे। ये आपका y is equal to sin theta का ग्राफ है। Okay, y equal to sin theta. That means how y is going to vary with respect to theta. Now it's very clear y is function of theta. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है dy by d by d theta of sin theta equal to cos theta होता है and d by d theta of cos theta equal to minus of sin theta होता है। ओके, सो ये हो गया आपका y is equal to sin theta का ग्राफ। अब मैं आपको y equal to cos theta का ग्राफ दिखा देता हूँ। ओके, y equal to cos theta जो ग्राफ होंगे मैं इसी में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। y equal to जो cos theta का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। It will start from here, will reach over here, उसके बाद ऐसे आएंगे, उसके बाद वो इधर से ट्रैवल करके इधर पहुंचेगा and after that it will reach here. So this is ये जो है this is y is equal to cos theta. Okay, now I told you y equal to sin theta. Now d by theta of sin theta ये आपका हो गया cos theta. डिफरेंशियल ऑफ sin theta that is equal to cos theta. अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, that is d by d theta of d by d theta of sin theta, एक बार और उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, that is equal to d by d theta of ये क्या है, this is cos theta, so that is equal to minus sin theta निकला। समझ में आया ना? एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by d theta of sin theta that is equal to cos theta मिल गया। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज d by d theta of cos theta that is equal to minus sin theta। सो जो माइनस sin theta का जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, y is equal to sin theta, इधर माइनस sin theta, दैट मींस इसका उल्टा। देखिए उल्टा बोले तो कैसे, ऐसे, ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनेगा, ऐसे देखो ऐसे बनेगा, है ना। और इधर आकर के ये देखिए इधर से इधर, है ना, उसके बाद इधर आकर के हिट करेंगे ऐसे। समझा नहीं है? ओके, नाउ हम वापस चलते हैं y इज इक्वल टू sin थीटा में। ओके, y इज इक्वल टू sin थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा में देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दैट इज पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये दोनों पॉइंट में स्लोप 0 है, ये दोनों पॉइंट में स्लोप 0 आप एग्री कर रहे हैं। ओके, सो ये दो पॉइंट में स्लोप 0 है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट में dy by d थीटा, इधर dy by dx नहीं है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू वेरी हो रहा है, दैट इज वाई dy by d थीटा
dy by d theta at a एंड b इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, dy by d theta is equal to 0। आपको याद होगा what was y was equal to cos, sorry, y was equal to sin theta, y was equal to sin theta। अब आप देखिए dy by d theta, that is d by d theta of sin theta, that is equal to cos theta equal to 0। कहाँ पे, दोनों पर आप देखिए cos theta का तो रेड वाला ग्राफ है ना, इधर 0 आया और इधर भी देखो इधर 0 दिखाई दे रहा है, सो वो 0 हो गया। ओके, नाउ इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाय d थीटा ऑफ dy बाय d थीटा, है ना, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज d स्क्वायर y बाय d थीटा स्क्वायर। ओके, दो बार डिफरेंशिएट किया, फाइन। सो दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या था, दिस वन, है ना, तो वो क्या मिलेंगे आपको, येलो वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट ए का dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, पॉइंट ए का dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है वो, डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है ना, तो आप देखिए नेगेटिव आ रहा है। सो पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी में dy by d theta is equal to 0, that means it could be maximum और minimum। now मेरा जो वैल्यू है सेकंड डिफरेंशियल, यानी कि d स्क्वायर y बाय d थीटा स्क्वायर, वो नेगेटिव आ गया। अब आप देखिए ये मैक्सिमम ऊपर है ना, अब इधर आप आओ, इधर क्या था, dy बाय d थीटा दैट इज इक्वल टू 0, बट d स्क्वायर y बाय d थीटा स्क्वायर ये पॉजिटिव आ गया, ऊपर है, और y का वैल्यू आप देखो वो नीचे है, यानी कि मिनिमम है। ओके, सो माय कंक्लूजन इज, अब आप आइए इधर अपने स्टडी पैकेज के पार्ट, let us be back to our study package। अब आप देखो अब देखो, सो हमारा ये जो स्टडी पैकेज है इस पे देखिए, वी आर प्रोवाइडेड विथ ए y वर्सेस x ग्राफ। सो इधर आप देखिए 2 पॉइंट ए एंड बी, है ना, 2 पॉइंट ए एंड बी। नाउ इधर आप देख सकते हैं पॉइंट ए जो है एंड पॉइंट बी, ये दोनों में dy by dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट वन थिंग वी नो, ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमा होगा, और ऊपर वाला जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, है ना, दैट वी नो, पॉइंट मिनिमम होगा और जो पॉइंट होंगे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा। ओके, क्योंकि उसका रीजन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। सो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगा, dy by dx is equal to 0, एंड जब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमा, इफ dy by dx is equal to 0 and d square y by dx square is negative, यानी less than 0, okay, then it is going to be maxima। वो ग्राफ का केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, वो ग्राफ का केस आप दोबारा एक बार पीछे जाकर के देखो तो you will come to know, okay, मैं क्या बोल रहा हूँ। Now let us discuss one illustration based on this। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, like y equal to f of x is given as 5x square minus
माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब आपको ये देखना है सबसे पहले से इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, सो आपको ये देखना होगा ना सबसे पहले किस वैल्यू पे dy by dx इज इक्वल टू 0 आ रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, you have to differentiate y with respect to x and you have to equate that equal to 0। so आप इसको डिफरेंशिएट करो, d by dx of y का वैल्यू क्या है 5x square minus 2x plus 1 एंड इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 5 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या है 2x है, माइनस ऑफ 2 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या है 1 है, प्लस ये क्या है 0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएंगे x इक्वल टू 1 बाय 5, x इज इक्वल टू 1 बाय 5 आ गया आपका, है ना, x इक्वल टू 1 बाय 5 आ गया। नाउ इसका मतलब ये है when x is equal to 1 by 5, I repeat when x equal to 1 by 5, okay, आपका dy by dx equal to 0 है, यानी कि x का वैल्यू जब 1 by 5 है उस कंडीशन में x के विथ रेस्पेक्ट टू y का वेरिएशन नहीं था, यानी कि y का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रहा था। सो उस कंडीशन में y का वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है और आपका वैल्यू y का वैल्यू जो है वो मिनिमम भी हो सकता है। ओके, अब आप देखो दिस इज dy by dx। ओके, अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, dy by dx ऑफ, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा है ना किसको dy by dx को, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि d square y by dx square। ओके, don't get panic once you see this। okay, so it is nothing d by dx of dy by dx का वैल्यू क्या था 10x minus 2, इसका वैल्यू आप देखो, इसका वैल्यू आपको क्या मिलेंगे d by dx of 10x, है ना, माइनस d by dx of 2, इसका वैल्यू क्या होगा 10 होगा, माइनस इसका वैल्यू 0, that is equal to 10, 10 is greater than 0। okay, so once it is greater than 0, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या था dy by dx is equal to 0 and d square y by dx square greater than 0 है, तो क्या होगा मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इधर आपको ग्रेटर देन 0 मिला, 10 आ गया ना, तो ग्रेटर देन 0 मिल गया, दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम वैल्यू है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सो हमें इनिशियल स्टेज में ये पता पड़ा था x इज इक्वल टू 1 बाई 5 में होगा मैक्सिमा या मिनिमा जो भी। अब आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना, इस पे x इज इक्वल टू 1 बाई 5 पुट कर लो, दैट इज 5 इंटू एक्स स्क्वायर बोले तो 1 बाई 5 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 बाई 5, ओके, प्लस 1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 5, है ना, माइनस 2 बाई 5 प्लस क्या होंगे 1 होंगे। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 5। ओके, you will get the answer as 4 by 5, option number 3, answer is 4 by 5. So that is how we find out maxima and minima value of a function. Now let us discuss some solved examples from integral calculus. Okay, question number 1. Integral of h to power 11 by 2 dx, x to power 11 by 2 dx. Okay, this is the function which we are going to integrate, and we are going to add along positive x-axis direction.
ओके, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ऑलरेडी मैंने ब्रीफिंग में बता चुका है। हमें पता है इंटीग्रल ऑफ x टू पावर n dx, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, सो क्या होना चाहिए, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, सो ये क्या होना चाहिए, x टू पावर, इधर हमारे पास क्या है 11/2 प्लस 1 अपॉन 11/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x टू पावर ये होना चाहिए 13/2 अपॉन 13/2 plus c, which means equal to 2 times x to power 13/2 upon 13 plus c. So next question number 2, that is function का हमारा क्या है, y is equal to x to power -7. So we are going to differentiate y into dx. Okay, so integral of y का वैल्यू क्या है, x to power -7 into dx will be equal to x to power -7 plus 1 is going to be -6. Okay, upon -6 plus c. You can see the same answer here as well. Next example is, देखिए y equal to x to power p by q, and the condition is given that p by q is not equal to -1. that is mentioned. Okay, so ये क्यों लिखा हुआ है वो बाद में आपको समझ में आएंगे, बस इतना एक कंडीशन है, बिकॉज -1 + 1 0 हो जाएगा ना, सो मतलब नॉट डिफाइनेबल हो जाएंगे, दैट इज द सिचुएशन ओवर हियर. So that the condition is given. So integral of y into dx, that is integral of x to power p by q into dx, that has to be equal to x to power p by q plus 1 upon p by q plus 1 plus c. That is the result. Okay, इसको सोल्व करोगे तो सॉरी x to power p plus q upon q, here also p plus q upon q, इधर आ जाएंगे plus c. So that will be the answer. You may check it out here as well. So next one is say I would like to mention it as question number 4 as per me. Y equal to x square minus cos x plus 1 by x. So integral of x square minus cos x plus 1 by x dx निकालना है. ओके, सो इसको आपको 3 पार्ट में करना होगा. सबसे पहले आप इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx देखेंगे. ओके, दैट इज x क्यूब by 3 प्लस कांस्टेंट, दैट इज c1. ओके, उसके बाद आप देखेंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx. ओके, दैट इज sin x प्लस c2, है ना. इंटीग्रल ऑफ cos x का वैल्यू sin x है, हमें पता है. नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx. वो क्या होता है, दैट इज log to the base e of x plus another constant, that is c3. ये log to the base e of x को आप ln of x भी लिख सकते हैं. सो आपको 3 एक्सप्रेशन मिल गए, है ना.
सो आपका dy इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया आपको? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस ऑफ, नेक्स्ट तो माइनस था ना, माइनस ऑफ इसका आपको क्या मिला था? cos x का sin x प्लस c2 प्लस 1 बाई एक्स का क्या मिला था? ln ऑफ x प्लस c3, ये मिले थे। लेट मी टेक c1 प्लस, c1 एक कांस्टेंट है, c2 एक अनदर कांस्टेंट था, c3 एक अनदर कांस्टेंट। सो c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू, मैंने c मान लिया। सो आपको मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस sin x, ओके, प्लस ln ऑफ x प्लस c मिल गया। ओके, so that is what is mentioned over here, x cube by 3 minus of sin x plus ln of x plus c। ओके फाइन। नाउ अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, बिगनर्स बॉक्स नंबर 4 नाम से जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6. These 6 questions are your homeworks. Okay, जो मुझे कल तक चाहिए होंगे। All right, that's all.